Assalamualaikum friends, hope you are all doing good. सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे. Today we are in lecture 6 of the Indian Penal Code and we are going to discuss the general exceptions. Chapter 4th of the Indian Penal Code deals with general exceptions. It is a very interesting chapter or as per prelims or mains is concerned, it is very important because इस chapter में से तो question आते ही आते हैं. तो आप इसको पूरी ध्यान से याद रखिए, पढ़िए पूरी तरह से. सो कमिंग टू दी जनरल एक्सेप्शंस, आई विल गो थ्रू फर्स्ट द section 6 of the Indian Penal Code, where when I discussed this section with you, I have told you that wherever there is penal provision, wherever there is illustration or definition of any offense in the Indian Penal Code, we have to define those things keeping in view the chapter 4th of the Indian Penal Code. Why we have to keep in view these things, this chapter 4th of the Indian Penal Code? Because chapter 4th of the Indian Penal Code deals with general exceptions, and these general exceptions, or we can say these general defenses, are devised, these are compiled at one place, that is chapter 4th of the Indian Penal Code. And in order to avoid repetition at every place, in every section, where the legislature have compiled it at one place, and that is chapter 4th of the Indian Penal Code. Or now coming to general exceptions, what are these general exceptions? Because it is chapter 4th of the Indian Penal Code. Whoever is charged with an offense under the Indian Penal Code, he can take the defenses available in chapter 4th. Not only a person who is labeled as a criminal under the Indian Penal Code, but whosoever is an offender under any special law or local law, he can take the general defenses. General defenses are available for those persons also who have committed offense under any special law or local law also. So where these general defenses are available, who can take these general defenses? ठीक है, when a person has committed any crime and he is prosecuted in a criminal court, तो criminal court gives him an opportunity to get exemption from criminal liability. ठीक है, तो he can take this exemption from criminal liability under chapter 4. He can claim any defense which are available under chapter 4th of the Indian Penal Code, and these defenses are available to the accused. These defenses are known as general defenses. And I have told you that section 76 to 106 of the Indian Penal Code deals with general exceptions, but these defenses are not exhaustive in nature. They are common to all offenses. The offenses which are defined in the Indian Penal Code, these defenses are available to all the offenses mentioned in the Indian Penal Code. But these are general exceptions. These are applicable to all the offenses. But in addition to the general defenses, there are special exceptions also. ठीक है, those special exceptions are confined to that particular section where they are mentioned. For example, we can take the example of section 300, which defines murder. In this section of murder, there are 5 exceptions. ठीक है, but these 5 exceptions are applicable only to that section. They are not in general in nature, they are special. इसी तरह से section 499, which defines defamation, it has 10 exceptions. Section 375 defines rape, and it provides 2 exceptions, but they are confined, restricted to that particular section. ठीक है, आपको होप कि आपको समझ आया होगा जनरल डिफेंसेस और स्पेशल डिफेंसेस में क्या फ़र्क है. नाउ कमिंग टू सेक्शन 76 to 106 of the Indian Penal Code, that deals with general exceptions. These general exceptions can be grouped into 2 categories. ठीक है, इसमें से कुछ डिफेंसेस है ऐसे which are excusable, and कुछ डिफेंसेस ऐसे हैं जिनको justifiable डिफेंसेस बोलते हैं. Now your question would be, what are excusable defenses and what are justifiable defenses? ये बहुत चैप्टर दोनों के साथ डील करता है. चैप्टर 4 deals with both kinds of defenses, excusable as well as justifiable. Now which are the offenses which are excusable, which are the defenses which are excusable, and which are the defenses which are justifiable? I will tell you. एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस वो डिफेंसेस होते हैं जब ये बंदा कोई ऑफेंस करता है तो उसके पास उस टाइम कोई इंटेंशन नहीं होता है.
ठीक है, उसको उस ऑफेंस करने का कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई इल इंटेंशन नहीं होता, उसके पास मेंस्ट्रुअल नहीं होता है। दैट मीन्स कि वो जब उसके पास इंटेंशन ही नहीं होता, जैसे बच्चा, छोटा बच्चा, वो कोई किसी को पत्थर मारेगा, क्या उसके पास इंटेंशन था कि वो उसको मार डालेगा? या फॉर एग्जांपल ये अल्कोहलिक जो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में हो, वो या कोई अनसाउंड पर्सन, ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ अनसाउंडनेस, वो किसी को लाठी से मारता है। ठीक है, डज दैट मीन कि उसके पास इंटेंशन था, उसके पास उसको मारने का इरादा था? पागल को क्या पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। सो दोज डिफरेंस, व्हेन ही इज नॉट हैविंग एनी क्रिमिनल इंटेंशन, दैट मीन्स ही इज नॉट क्रिमिनल। तो सो दोज डिफेंसेस आर एक्सक्यूज्ड under these under this chapter 4th of the Indian Penal Code, and the sections which deal with these excusable defenses are from section 76 to 95 of Indian Penal Code. Now coming to justifiable defenses, what are justifiable defenses? Justifiable defenses में इसके बरअक्स है, इसमें बंदे को पता होता है, ऑफेंडर को पता होता है, उसको नॉलेज होती है, वो कॉन्शियस स्टेट में उसको पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, बट ही इज जस्टिफाइड, उसके पास साउंड रीजन होता है, उसको ऑथराइजेशन होती है, उसको जस्टिफिएबल डिफेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्शन 96 to 106 ऑफ द इंडियन पिनल कोड डील्स विद जस्टिफिकेशन, जैसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, बंदे को कोई मारता है, मारने के लिए आता है, तो वो अपनी प्राइवेट डिफेंस में अपने आप को बचाने के लिए भी उसको मारता है। ठीक है, उसके पास जस्टिफाइड रीजन होता है, तो उनको जस्टिफिएबल डिफेंसेस बोलते हैं। दो जस्टिफिएबल डिफेंसेस आर आल्सो प्रोवाइडेड इन चैप्टर 4th ऑफ द इंडियन penal code. Now these general exceptions are discussed under, we will discuss them under ऑलमोस्ट 12 हेड्स। ठीक है, पहला तो फर्स्ट दैट इज मिस्टेक। मिस्टेक जो है टू सेक्शन 76 एंड 79, जुडिशल एक्ट सेक्शन 77 to 78, एक्सीडेंट इज ऑल्सो डिफेंस सेक्शन 80, necessity is another kind of defense, section 81 deals with necessity, infancy छोटा बच्चा, that is section 82 to 83, insanity section 84, intoxication is also defense section 85 to 86, consent section 87 to 91, and ninth defense is good faith section 88 to 93 deals with good faith, compulsion or threat section 94 deals with compulsion or threat, or 11th defense trivial act section 95 deals with trivial acts, and the 12th kind of defense is right of private defense section 96 to 106 deals with right of private defense. अब क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन अराइज होता है कि जब एक बंदा, जब एक एक्यूज्ड होता है, तो उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होता है कि वो उसका गिल्ट प्रूव करे। उसका बर्डन इज लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ ओनली रीजनेबल डाउट, बट दे हैव टू प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। गिल्ट प्रूव करने में प्रोसिक्यूशन पे बर्डन होता है। ठीक है, एक्यूज्ड को अपना गिल्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं, वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। ठीक है, ये फंडामेंटल रूल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ द गिल्ट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन और दे हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, क्योंकि ये समझा जाता है देयर इज प्रिजम्पशन दैट एक्यूज्ड इज इनोसेंट। ठीक है, और ये प्रिजम्पशन जो होती है, ही इज़ ऑलवेज, अगर उसने मर्डर भी किया होगा, अगर उसने चोरी भी की हुई होगी, ही इज़ ऑलवेज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट until his guilty is proved beyond reasonable doubt by prosecution, by way of producing, by way of giving cogent, convincing and reliable evidence before the court, and they have to prove the guilt of the accused beyond reasonable डाउट। ये प्रोसिक्यूशन पे होता है। ठीक है, अब सवाल क्वेश्चन अराइज होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ का एक्सेप्शन किस पे होता है। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ गिल्ट तो प्रोसिक्यूशन पे होता है, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ एक्सेप्शन किस पे होता है। सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स दैट whosoever claims the benefit of any of the general exceptions provided under chapter 4th of the Indian Penal Code, burden of proof is on him। ठीक है, जो कोई जनरल डिफेंस में कोई डिफेंस लेना चाहता है, तो सेक्शन 105 ऑफ एविडेंस एक्ट बोलता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ तो उसी बंदे पे होता है। दैट मीन्स कि सेक्शन 105 तो एक एक्सेप्शन है जनरल रूल ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऐसा बोलता है कि गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन को। ठीक है, लेकिन सेक्शन 105 बोलता है, क्योंकि सेक्शन 105 तो बोलता है कि उस पर प्रूव है, अगर कोई एक्सेप्शन लेना चाहता है तो उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ
उसी पे है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या द बर्डन ऑफ प्रूफ विच लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन एंड द बर्डन ऑफ प्रूफ विच लाइज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव एन एक्सेप्शन इज सेम? इसका नेचर सेम होता है? नो, इसका नेचर सेम नहीं होता है। जो बर्डन विच लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द अक्यूज्ड, दे हैव टू प्रूव इट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, ठीक है। बट द burden which lies on the accused to prove an exception, the accuser does not it is not necessary for him to prove that exception beyond reasonable doubt. He can prove that to the extent of preponderance of probability, ठीक है। अब हम फर्स्ट डिफेंस की तरफ आएंगे। दैट इज़ फर्स्ट डिफेंस, दैट इज़ मिस्टेक। सेक्शन 76 एंड 79 डील्स विथ मिस्टेक, याद रखिएगा आप। और मिस्टेक जो होती है, मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक होती है इग्नोरेंस हम बोलेंगे, या अनइंटेंशनल, ठीक। अनइंटेंशनली कोई काम करता है, ठीक है, या किसी को किसी वजह से मतलब उसको इग्नोरेंस होती है, उसके पास मेंस्ट्रुअल नहीं होता है, तो उसकी उस काम करने से किसी को इंजरी होती है, कुछ डैमेज होता है, तो उसको मिस्टेक बोलेंगे, ठीक है। अब ये मिस्टेक इट इज़ ऑफ टू काइंड, दैट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है? मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है जब एक बंदे को फैक्चुअल नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, उसको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसको इंटेंशन नहीं होता है, तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट बोलेंगे। मिस्टेक ऑफ लॉ होता है जब उसको लॉ की जानकारी नहीं होती है, उसको नहीं पता होता है कि ये लॉ है, और उसने लॉ को साइड में रख के कोई काम किया, कोई ऑफेंस किया, ठीक है। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूज्ड एंड मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज्ड। इसका क्या मतलब हो गया? मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ जो है, ये प्रपोजिशन इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम इग्नोरेंस फैक्ट एक्सक्यूज इट, इग्नोरेंशिया जूरिस नो एक्सक्यूज इट। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ डज नॉट एक्सक्यूज। यानी कि अगर किसी बंदे को फैक्ट की जानकारी नहीं है, इग्नोरेंस है, पूरा पता नहीं है उसको, तो उसको छूट है, वो क्रिमिनली लायबल नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे को लॉ की जानकारी नहीं है, ठीक है, फिर उसने ऑफेंस किया, उसने दूसरी शादी की, उसको नहीं पता था कि ये ऑफेंस है, वो एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है, उसको सज़ा मिलनी ही मिलनी है। Now coming to mistake of fact, section 76 deals with mistake of fact. It provides that I will read the section language. Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be bound by law to do इट। कुछ भी ऑफेंस नहीं है अगर कोई बंदा बिकॉज ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसको बेचारे को नॉलेज नहीं है, वो अनइंटेंशनली कोई काम कर रहा है, इसको इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट है, वो कोई काम कर रहा है लेकिन इन गुड फेथ, ठीक है, तो वो ऑफेंस नहीं है। उसको लगता है कि इन गुड फेथ ही इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू इट, उसको अथोराइजेशन है, उसको लॉ साउंड बैकिंग है, तब जाके वो काम करता है, तो इन गुड फेथ वो करता है, लेकिन इंटेंशन नहीं है, कर्नल इंटेंशन नहीं है, तो सेक्शन 76 बोलता है कि वो ऑफेंस नहीं है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ठीक है। सोल्जर जो है उसने मॉब पे फायर कर दिया, लेकिन इन कन्फर्म उसको सुपीरियर ऑफिसर ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन उसके पास तो क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, उसको नहीं था तो कि मुझे फलानी बंदे को पे गोली चलानी है, उसको तो उसने इन कन्फर्मिटी विद द कमांड ऑफ द लॉ किया, ठीक है, तो उसने ऑफेंस नहीं किया। इसी तरह से दूसरी एक इलस्ट्रेशन है, एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस बीइंग ऑर्डर्ड बाय दैट कोर्ट अरेस्ट टू वाई, ठीक है, उसको ऑर्डर मिला क्या, वाई को अरेस्ट कर लीजिए, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जड टू बी वाई, लेकिन उसे पूरी छानबीन करके जड को गिरफ्तार किया, क्योंकि उसको लगा जड ही वाई है, तो जड हैज़ कमिटेड नो, क्योंकि उसने गुड फेथ में किया, उसको कोई पर्सनल एनिमोसिटी तो थी नहीं उसके साथ, तो इट इज़ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ये एक्सक्यूज्ड है, इसको कोई ये ऑफेंस नहीं है। इसमें टू केस लॉज है वेरी इंपॉर्टेंट, और वर्सेस टॉल्सन एंड और वर्सेस प्रिंस। इसमें टॉल्सन में क्या था, आई विल टेल यू द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ द केस। टॉल्सन में क्या होता, टॉल्सन ने मिसेस टॉल्सन ने शादी की थी मिस्टर टॉल्सन से, ठीक है, तो फिर हर हस्बैंड डेजर्टेड हर,
फिर मिस्टर टाल्सन गायब भी हो गया, उसकी वायर अबाउट्स पता ही नहीं चले फॉर मोर देन 7 years, ठीक है। और मिसेस टॉल्सन ने शी मेड ऑल इंक्वायरीज अबाउट हर हस्बैंड, ठीक है, एंड शी केम टू नो दैट हर हस्बैंड हैड डाइड इन अ शिपरेक, ठीक है। मिसेस टॉल्सन जो है उसने शादी कर ली बिलीविंग दैट हर हस्बैंड डाइड, बट सम टाइम आफ्टर हर remarriage हर फर्स्ट हस्बैंड reappeared एंड चार्जड हर फॉर बायगमी, उसने उस पर केस कर दिया बायगमी का। तो कोर्ट ने बोला कि इन दिस केस द एक्ट ऑफ मिसेस टॉल्सन in getting married under the belief that her husband's death is a mistake of fact is a defense, क्योंकि मिसेस टॉल्सन ने तो पूरी इंक्वायरी कर दी, 7 साल से उसका हस्बैंड गायब रहा, तो उसको अगर उसको कोई किसी जगह से भी ऐसा कुछ मिलता, जानकारी मिलती नहीं वो जिंदा है या कुछ, तो वो नहीं करती। तो इट इज़ उसको कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को धोखा दे दे, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला शी वॉज हेल्ड नॉट गिल्टी फॉर बायगैमी एंड वॉज एक्विटेड। इसके बाद को जो आर वर्सेस प्रिंस है, इसमें क्या हो गया, इसमें ये जो मिस्टर प्रिंस एक्यूज था इसमें, तो ही वॉज इन लव विथ अ गर्ल, ठीक है, बट द गर्ल वॉज बिलो द एज ऑफ 16 years, ठीक है। द एक्यूज्ड यानी कि मिस्टर प्रिंस हैड टेकन अवे द अनमैरिड गर्ल फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी ऑफ हर पेरेंट्स विथ एन इंटेंशन टू मैरी हर। ही थॉट, उसको लगता था कि शी इज़ अबोव 16 years एंड द गर्ल हैड ऑल्सो टोल्ड हिम दैट शी वॉज 18 years old. But the father of the girl lodged a complaint, alleging that Prince had illegally taken away his unmarried minor daughter below the age of 16 years. फिर the Mr. Prince was arrested and the criminal proceedings were instituted against him. फिर कोर्ट ने बोला लेकिन मिस्टर प्रिंस को फिर कन्विक्ट किया गया ऑन द ग्राउंड दैट हिज एक्ट ऑफ टेकिंग अवे एन अनमैरिड गर्ल बिलो 16 years फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी ऑफ हर पेरेंट इटसेल्फ वाज एन ऑफेंस पुनिशेबल इररिस्पेक्ट ऑफ द प्रूफ ऑफ मेनस्ट्रिया। तो कोर्ट ने बोला तो अगर इसके पास मेनस्ट्रिया नहीं था, इल इंटेंशन नहीं था, लेकिन 16 साल की लड़की को घर से भगाना दैट इज़ एन ऑफेंस इन इटसेल्फ, ठीक है। तो फिर इसको सज़ा मिली। तो आर वर्सेस टाल्सन में तो उसको बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग एनी क्रिमिनल इंटेंशन, ठीक है, तो उसको वहाँ पे सज़ा नहीं मिली। लेकिन इसमें ये ऑफेंस है, इस यहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ का ये है, तो उसको यहाँ पे सज़ा मिली। नाउ कमिंग टू मिस्टेक ऑफ लॉ जो है ये डिफेंस नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अभी। तो एवरी पर्सन जो है उसको पता होना चाहिए कानून का, ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा एक मैगजिम है, इट इज़ एंशन द कॉमन लॉ मैगजिम, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजिट, एक लॉ की जानकारी नहीं होना एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है। Now coming to section 79, which deals with mistake of law. Nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of fact and not by reason of mistake of law in good faith believes himself to be justified by law in doing it. यानी कि अगर किसी के पास साउंड बैकिंग है, उसको अथोराइजेशन है, वो अगर ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन अगर उसको साउंड लॉ के बारे में पता है, लॉ के बारे में उसको पता है, लॉ के बारे में उसको जानकारी नहीं है, ठीक है, फिर अगर वो ऑफेंस करेगा, ठीक है, तो फिर वो ये क्लेम करेगा अरे जी मुझे लॉ की जानकारी नहीं थी, वो एक्सक्यूज नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इसमें एक ACZ व्हाट अपीयर्स टू A टू बी अ मर्डर। ए ने जड को देखा तो उसको लगा कि जड मर्डर करने वाला है। ए इन एक्सरसाइज टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट एक्सर्टेड इन गुड फेथ ऑफ द पावर विच द लॉ गिव्स टू ऑल पर्सन्स ऑफ अप्रहेंडिंग मर्डरर्स इन द एक्ट सीजेस जड। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उसको लगा कि नहीं मुझे उसको रोकना चाहिए, उसने उसको पकड़ा और उस जड़ को प्रॉपर अथॉरिटी के पास ले गया। ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया।
because he acted in good faith. He was having a justified reason. He was having a good faith to prevent the offense, और justified by law भी है, तो he has committed no offense, though it may turn out that was acting in self defense. इसमें एक केस ला है और वर्सेस बेली केस में क्या हुआ था, इसमें एक बंदा एक्यूज वो अफ्रीका से बहुत दूर था, ठीक है, अफ्रीका के कोस्ट से साहिल से वो काफ़ी दूर था। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया, तो उसको पता ही नहीं चला, उसको जानकारी नहीं थी इस कानून के बारे में, जिसमें उसको चार्ज लग गया, ठीक है, उस पर इल्ज़ामात लग गए थे उसमें। तो कोर्ट हेल्ड हिम गिल्टी डिस अलोंग हिज प्ली वांट, तो कोर्ट ने उसको मुल्जिम करार दिया। इवन कि उसने डिफेंस ले लिया, मुझे मिस्टेक ऑफ लॉ है, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी, लेकिन कोर्ट ने उसको गिल्टी करार दे दिया। इसी तरह से और वैसे वीक एंड स्टॉक, इसमें क्या हो गया था, इसमें एक्यूज था, तो वो था इलिटरेट, उसको ना खानदा था, उसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। तो उसको किसी ने बोला, अरे जी आपका डाइवोर्स हो गया, ठीक है, इन गुड फेथ उसको किसी ने बोला, जानकारी दे दी आपका डाइवोर्स हुआ है, तो उसने शादी कर ली, ठीक है, इंक्वायरी करने के बगैर उसने शादी कर ली। तो उसकी पहली बीवी ने उस पर चार्ज लगाया फॉर बायगमी का, तो कोर्ट ने उसको गिल्टी करार दे दिया, उसको कन्विक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि टॉल्सन और वीट केस में क्या फ़र्क है, ठीक है, दो डिफरेंट है। जो टॉल्सन वाला केस है, जहाँ पे टॉल्सन ने शादी की थी, वो एक्सक्यूजेबल है, ठीक है। तो वो उसको वहाँ पे उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, ठीक है, तो वो एक्सक्यूजेबल है, तो उसको दैट इज़ वाई कि उसको छोड़ दिया गया। लेकिन जो ये वीट केस है, वीट एंड स्टॉक केस, देयर वाज अ मिस्टेक ऑफ लॉ विच इज़ नॉट एक्सक्यूजेबल, ठीक है, यहाँ पे भी मिस्टेक ऑफ लॉ, लेकिन ये एक्सक्यूजेबल नहीं है, हैंस द एक्यूजर वाज कन्विक्टेड, ठीक है। वी कैन सी कि मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ अ डिफेंस, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ डिफेंस, मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो डिफेंस, ठीक है। तो दैट इज़ वाई कि मिसेस टॉल्सन केस में उसको क्योंकि मिस्टेक ऑफ लॉ था, यहाँ पे वहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट था टॉल्सन वाले केस में। तो उसका इंटेंशन नहीं था, उसने इंक्वायरी कर दी थी, उसके बाद उसने शादी की। यहाँ पे उसको वीट केस में उसको लॉ की जानकारी ही नहीं थी, तो लॉ की जानकारी नहीं होना ये डिफेंस नहीं है, लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है वो डिफेंस है। Now coming to second type of defense, that is Judicial Act section 77 and 78 deals with Judicial Act, ठीक है। Judicial Act का क्या मतलब है, ये एक्ट्स ऑफ जजेस एंड कोर्ट्स है। अगर ये कोर्ट्स जज काम करते हैं या किसी को सज़ा सुनाते हैं या किसी पे कोई या कोर्ट में कोई सबऑर्डिनेट ऑफिसर कोर्ट की डायरेक्शन फॉलो करते हैं, तो दैट दे आर इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है। तो सेक्शन 77 प्रोटेक्ट द जजेस फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, और सेक्शन 78 प्रोटेक्ट द पर्सन एक्टिंग अंडर द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेक्शन 77, ये क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ के तहत जो भी वो जुडिशियल पावर एक्सरसाइज करता है, तो ही इज़ इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, उसको कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं, वो ऑफेंस नहीं है, वो ही इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, ये सेक्शन 77 बोलता है। Now coming to section 78 refers to act done pursuant to the judgment or order of a court. Section 78 is wider than that given to a judge in section 77. इसमें यही है कि अगर कोई बंदा इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर या जजमेंट के तौर पर वो कोई काम करता है तो वहाँ पे उसको वो इम्यून है फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है, उस पर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा, ठीक है। तो सेक्शन 77 डील्स विद जुडिशियल इम्यूनिटी एंड सेक्शन 78 डील्स विद एग्जीक्यूटिव और मिनिस्ट्रियल इम्यूनिटी, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं कोर्ट के वो इसी में इम्यून है। तो सेक्शन 77 प्रोटेक्ट जजेस वाइल एक्टिंग जुडिशियली, ठीक है। तो सेक्शन 78 इज सप्लीमेंट्री कोड टू सेक्शन 77, इट प्रोटेक्ट्स ऑफिसर्स कैरिंग आउट द ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। It states that nothing is an offense if the act is done in pursuance of a judgment or an order passed by a court, even though the court has no power to pass a judgment or make such order, is section 78 बोलता है। Now it is all for today's lecture. Hope आपको अच्छा लगेगा। अगर आपका मेरा लेक्चर किसी भी रीज़न से अच्छा लगेगा तो हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद अदर्स। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।